I welcome you all to 15 Minutes Revision Adda, a new series launched by Optimum Educator. Myself Pratima Tiwari, professor in SNDT University. Today I am going to revise this chapter Heredity and Evolution. ये वही chapter student जो आपको काफी difficult लगता है समझने में as well as to grasp it. But today within a span of 15 to 20 minutes it would be made very easy for you. But before I proceed, आपके फायदे की एक बात बता दूं, there is a link in the description box from where you can buy the entire chapter. Chapter बहुत पसंद आए, then you can buy the entire syllabus from the leading stores. But सबसे पहले please do like, share and subscribe for next amazing videos. So I will begin with the revision of Heredity and Evolution. On the screen you can see this is a list of the topic in this chapter. The total 8 topics से सब topics है जो हमें इस chapter में पढ़ना है. Quickly let's go through it according to the textbook. First, list of scientists और उनके काम, उन्होंने इस फील्ड में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में क्या क्या स्टडी किया है, उनके काम मैं आपको पीपीटी पे पटाख से उसको दिखा दूंगी. नेक्स्ट, सेकेंड टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. दिस आर द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ एवोल्यूशन. नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन्स theory, Lamarckism, that is Lamarck theory, speciation, and finally human evolution. Now let's quickly look for the list of the scientists. This is first scientist Gregor Johann Mendel, father of genetics, Hugo de Veris, who gave up mutational theory. Now student, ये सब scientists के नाम हैं, उनके काम कहाँ पे आता है, कोरिलेशन में या फिर MCQ में, और else it comes in 1 marks. Answer the following. So be thorough with the name of the scientists and the work done by them. Walter and Sutton has observed the first chromosome in grasshopper. Every MacLeod and McCarthy, ये तीनों ने मिलके क्या बताया था, except virus सबके अंदर genetic material क्या है, DNA. Next is फ्रांसिस जेकब एंड मोनाड, who gave the model of protein synthesis. जो हम लोग ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, वो पैटर्न इन्होंने प्रूव किया था इन बैक्टीरियल सेल. नेक्स्ट यू हैव सम डेफिनेशंस व्हिच आल्सो आस्क्ड इन 1 marks or define the term. Genetics, a branch of biology which deals with the scientific study of heredity and variation. तो अभी आपको पता चल गया होगा heredity and evolution किसका पार्ट है, genetics का. Don't forget it. Next you have heredity. It's a transmission of biological character from one generation to the another generation via genes. ये सब आपको thorough होगा. Variation, differences between parents and offspring, offspring of the same parents and individual of the same species. ये 3 differences को कहते हैं variation. Evolution के 2 definitions है. सिर्फ एक simple tip दे देती हूँ student आपको, how to study this definition. Definition अगर बहुत बड़ा होता है तो chunk it. Fine. Formation of new species due to change in specific character. ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. Of several generation of living organism as a response to the natural selection is called evolution. ये होता है how to study the bigger definition, chunk it and correlate it. The next one is also the same. The another definition of evolution. Now speaking about this definition, in what part, how many part, again 3 part you have to chunk it. पहला, progressive development of plants and animals. कहाँ से, from the ancestor having different structural and functional organization. इसको कहते हैं दूसरा definition. Meaning one and the same है, वो natural selection point of view बोल रहे हैं, यहाँ पे compare करके बोल रहे हैं. Next we completed with the first topic. That was list of scientists and their work. So let's check out कौन सा topic complete हो गया है. So this topic is completed now. Now we'll go to the next topic, that is transcription, translation and translocation. उसका एक simple theme है student. आपके textbook में एक word use किया हुआ है. Fine. And this 3 processes used for what? This is used for protein synthesis. एक term use किया है जिसको कहते हैं central dogma. Now what is dogma theme? प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल थीम क्या है? सबसे पहले होगा डीएनए,
डीएनए से बनेगा आरएनए एंड आरएनए के हेल्प से बनेगा प्रोटीन। ये है थीम। किसका थीम है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का। अब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन एज वेल एज ट्रांसलोकेशन। द नेक्स्ट टू टीज उसके ऊपर होता है। सो ये वाला और ये वाला प्रोसेस साथ में होता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू क्विकली। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है जहां पे डीएनए, दिस वन इज डीएनए एंड दिस वन इज आरएनए। तो आपको देख के पता चल जा रहा है डीएनए डबल स्ट्रैंड है एंड आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है। डीएनए में केमिकल्स होते हैं साइटोसिन CGANT, जो हमारा प्रोटीन का कोड होता है। डीएनए के ऊपर प्रोटीन का कोड होता है, फाइन। एंड इनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन, ग्वानाइन, एडेनाइन एंड थाइमिन। डीएनए का जो कोड होता है वो डिकोड करता है आरएनए। तो डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? एक तो सिंगल स्ट्रैंड है, दूसरा कौन सा डिफरेंस है? इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए विल हैव यूरेसिल। ये दो डिफरेंस है, आपको डिस्टिंग्विश आएगा तो आप फटाक से लिखना। डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए में थाइमिन होता है, इसमें यूरासिल होता है। तो AUGC यही हमारे प्रोटीन के कोड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 सेट, मतलब 3 अल्फाबेट मिला के एक अमीनो एसिड का कोड होता है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ना सिंपल ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए के ऊपर हमारे प्रोटीन का कोड है। अब ये आरएनए इस कोड को लेके कहां पे जाता है? ये आरएनए इस कोड को लेके इट गोज टू अ मूव इनटू राइबोसोम। वेरी सिंपल, वो आ जाता है राइबोसोम में, राइबोसोम के पास। अब यहां पे पहला राइबोसोम अटैच होता है। नाउ दिस ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं राइबोसोम, पहले फर्स्ट 3 पेयर को, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करता है। सो दिस इज द फर्स्ट कोडॉन। उसको रीड करके फिर वो नेक्स्ट 3 पे मूव होता है, फाइन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, इसको कहते हैं एमआरएनए, एंड राइबोसोम के अंदर जो होता है उसको कहते हैं आरआरएनए। फाइन, ये 3 टाइप के होते हैं। एमआरएनए के ऊपर तो कोड है प्रोटीन का, अमीनो एसिड का। टीआरएनए के पास प्रोटीन है, आई मीन अमीनो एसिड है, यू कैन सी यहाँ पे अमीनो एसिड है। एंड राइबोसोम जब मूव करेगा तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो पहला राइबोसोम जब फर्स्ट कोडॉन रीड करेगा तो टीआरएनए एंटर होगा। अगर कोडॉन एंड एंटी कोडॉन मैच होता है, यू कैन सी यहाँ पे एंटी कोडॉन है, टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन है, मैच हुआ, एक अमीनो एसिड रिलीज हुआ। फिर ये राइबोसोम मूव करता है तो दूसरा अमीनो एसिड अटैच होता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके लॉन्ग प्रोटीन चेन बनता है। And the bond between them is peptide bond. So this is called as movement of ribosome is called as translocation, and converting the code into amino acid is called as translation. ये होता है इसका basic theme. Next we are going to study the evolution. Evidence. द एवोल्यूशनरी एविडेंस। एवोल्यूशन क्या होता है मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया। अब सब कहते हैं कि हम अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? क्या कुछ एविडेंस है, प्रूव है? यस, वी हैव डिवाइडेड दिस एविडेंसेस इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब हम बाहर से सिमिलर दिखते हैं। अब इस पिक्चर में देख लीजिए, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 काइंड्स ऑफ मैमल। यहाँ पे मैमल दिख रहे हैं। क्या सबके फेस के ऊपर 2 आईज है? यस है। नोज है। उनकी बॉडी पे स्किन है जिसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स है, सम पेक्यूलियर लेयर्स, यस दे डू हैव।
नोज के नीचे माउथ है, ऐसा नहीं किसी का माउथ नोज के ऊपर है. सो दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. सिंपली स्टूडेंट रिमेंबर, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसकी मीनिंग बस इतना याद रखना. फाइन. नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल एविडेंस का मीनिंग होता है अंदर से स्ट्रक्चर सेम होगा, बाहर से फंक्शन कुछ और होगा. मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता था, बाहर से अपीयरेंस एकदम सेम होगा, एंड यहाँ पे एनाटॉमिकल में अंदर से स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है, बाहर से फंक्शन कुछ और है. तो यहाँ पे यू कैन से ह्यूमन हैंड, कैट का लेग, वेल का फिन, बैट का पेटेजियम, उसको पेटेजियम बोलते हैं, विंग्स आपके टर्म में बोलते हैं. फाइन. अब यहाँ पे देखिए, इनको भी फेलेंजिस है, मेटाकार्पल्स है, फर्स्ट बोन, अल्ना, कार्पस, रेडियस एंड ह्यूमरस. सेम वे कैट को भी है, फेलेंजिस है, मेटाकार्पल्स है, ग्रीन कलर, येलो कलर का कार्पल्स है, दिस इज रेडियो अल्ना एंड दिस इज ह्यूमरस. सेम वे यहाँ पे भी ह्यूमरस, एंड यू कैन रिलेट, सारे कलर्स भी अच्छे से दिए हुए हैं. अब अपने फंक्शन के हिसाब से कोई चीज बड़ा है, कोई चीज छोटा है, बट एनाटॉमिकली मीन्स इंटरनली दे आर सेम. नेक्स्ट, the third evidence is paleontological evidence. Paleontological evidence का मीनिंग होता है evolutionary connections. Evolutionary connections means they are related to each other, जैसे Archaeopteryx, but that is a connecting link. Paleontological are fossil fuels. We find out some fossil fuels and there is a connection between them and somebody else. Now this fossil fuels are calculated by carbon dating. एक कार्बन डेटिंग प्रोसेस है आपके टेक्स्ट बुक में, उससे इसको कैलकुलेट किया जाता है, द एज ऑफ फॉसिल्स. आई एम सॉरी, इट्स फॉसिल्स. नेक्स्ट, एंड दोस फॉसिल्स लेटर फॉर्म फॉसिल फ्यूल आल्सो. सम फॉसिल्स रिमेन एंड दैट इज द एविडेंस कि हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर के पास ऐसे पार्ट्स थे, वैसे पार्ट्स थे. दैट इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजिकल. नेक्स्ट, एवोल्यूशनरी कनेक्शन और एविडेंसेस आर कनेक्टिंग लिंक्स. व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक्स? एक एनिमल या ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसके अंदर दो ग्रुप के कैरेक्टर होंगे. सो ओवर हियर दे हैव मेंशन्ड एनिमल्स एग्जिबिटिंग कैरेक्टर्स ऑफ two adjacent taxonomic group are called connecting link. For example, some pictures are there. ये है स्फिनोडॉन, that is fossil living fossil lizard. Amphibia and reptile का connection है. This is Latimeria fish, Pisces and amphibian का connection है इसके अंदर. Next you have duckbill platypus, mammal and egg-laying, that is oviparous, amphibian का connection है. Next evidence is vestigial structure. वेस्टिजियल स्ट्रक्चर मतलब वो होता है हमारी बॉडी में जो नॉन फंक्शनेबल होता है बट हमारे एंसेस्टर में फंक्शनेबल होता है. मतलब कि पहले वो हमारे एंसेस्टर में काम करता था बट हमारे अंदर अब काम नहीं करता है. दिस इज अ फोर्थ एविडेंस. सम एग्जांपल ओवर हियर इज विजडम टूथ और teeth, ear muscles, tonsils, male nipples, coccyx means tailbone. In your textbook they have also given about appendix and plica semilunaris, this you don't have. So in your textbook they have given appendix, coccyx, earlobes, wisdom tooth. These are the few examples. Just understand the meaning, student, and the examples. That is enough to make the chapter easy. Next, embryological evidence. Now over here, student, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस. इससे पता चल जाता है कि each and every class is related. मैमल के कितने क्लास होते हैं? 5. पाइसेस, एम्फीबियन, एव्स, सॉरी रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फिश, सेलेमेंडर, आई एम अंडरलाइनिंग, फिश, सेलेमेंडर, टोर्टाइस, चिक, पिग, काफ, रैबिट एंड मैन. अब स्टूडेंट अगर आप ये लास्ट वाला लाइन देखोगे, ये वाला जो मैं मार्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे देख के पता चलेगा कि ये किसका एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो, आई होप यू नो, एम्ब्रियो जो वूम के अंदर हमारा बॉडी बनता है, किसका एम्ब्रियो है पता चल जाए. पहला वाला फिश है, दूसरा सेलेमेंडर है, ये कोई टोर्टाइस का बेबी है, ये कोई पिग का बेबी है, मालूम पड़ रहा है. बट व्हाट अबाउट दिस लाइन, द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट रो, इससे मालूम पड़ रहा है क्या किसका बेबी है? नो. यहाँ पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि each and everyone is same. This is called as a perfect connection कि हम सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड है.
तो ये प्रूफ है कि हमारा कुछ पार्ट फिश से आया है, कुछ पार्ट फ्रॉग से आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिटेल इज देयर इन द चैप्टर डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट, ओके, लास्ट इज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर विच इज अगेन रिपीटेड. थोड़ी देर पहले भी इसको कर दिया था, यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में फिर से दिया हुआ है. जस्ट गो थ्रू, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक. Now we are going to study the two important theory. One is Darwin's theory and one is Lamarckism. So first यहाँ पे Lamarckism का फोटो, तो मैं आपको Lamarckism एक्सप्लेन कर देती हूँ. फाइन, एक शॉर्ट में आपको पता ही होगा. What does Lamarck say? वो Lamarck, who is Lamarck, why he is involved in this, ये सब आपको चैप्टर डिस्क्रिप्शन में. अब यहाँ पे एक चार्ट में आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि Lamarck क्या कहता है. इन शॉर्ट में आपको बता दो स्टूडेंट, लेमार्क ये कहता है कि कोई भी कैरेक्टर हमारे बॉडी का अगर लंबे समय तक या फिर काफी जनरेशन ने 10 to 20 जनरेशन उसको यूज नहीं किया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होता है. पर कोई भी कैरेक्टर अगर लंबे जनरेशन में यूज हो रहा है एंड एनहांस हो रहा है तो वो हमारा एक पेक्यूलियर फीचर हो जाता है इन द कमिंग 20th और 30th जनरेशन. 20वीं या 30वीं जनरेशन जो होती है उसमें एकदम वो पेक्यूलियर फीचर हो जाता है. अब यहाँ पे लेमार्क ने एग्जांपल दिया था जिराफ का, ये आप सबको पता है. लेट्स कंप्लीट द चार्ट. इंटरनल अर्ज, फर्स्ट ही सेज दैट कि उस पर्टिकुलर जानवर या ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है कि वो चीज को वो डेवलप करे. किसकी वजह से? एनवायरमेंट चेंज की वजह से. एनवायरमेंट चेंज हुआ इसलिए उसको जरूरत होती है कि वो चीज उसके अंदर रहे. एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से उसको न्यू नीड्स होते हैं. जैसे जिराफ के आजू बाजू वाले नीचे के घास सब खत्म हो गए तो उसको जरूरत पड़ी कि अपना भूख खत्म करने के लिए ऊपर के पत्ते खाए. इन ऑर्डर टू गेट दोज लीव्स नेक इंक्रीज होने लगा तो वो न्यू नीड था. अब वहां पे न्यू नीड में वो ऑर्गन तो डेवलप हुआ. अगर उस ऑर्गन का यूज करते हैं तो वो स्ट्रक्चर इज डेवलप बेटर वे एंड दैट कैरेक्टर इज एक्वायर्ड एंड अ न्यू स्पीशीज इज फॉर्म. बट हमारे केस में एग्जांपल अपेंडिक्स था हमारे एंसेस्टर में, बट उसका डिसयूज हुआ. डिसयूज होने की वजह से स्ट्रक्चर डिसअपियर्ड, वेस्टिजियल हो गया एंड वो हमारे कैरेक्टर में आ गया. एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेड, जेनेटिक में आ गया एंड अगेन वी आर अ न्यू स्पीशीज, मॉडर्न मैन. Fine. This is Lamarckism. Now we are going to study the next theory, that is Darwin's theory. Before that, let's check it out how much topics we have completed. Over here, this topic is completed, this is completed, evidences are completed, Darwin's theory of natural selection I am going to do, and Lamarckism is completed. So I am starting with the Darwin's theory. Now, speaking about Darwin's theory, Darwin is such type of scientist who emphasizes only on two concept. दो ही concept था उसका. एक था survival of fittest and second is natural selection. सिर्फ यही दो चीज पे स्टूडेंट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. व्हाट ही सेज दैट अगर सराउंडिंग में चेंज आता है, आपकी बॉडी या आपका पॉपुलेशन रेडी है उस चेंज को एक्सेप्ट करके अपने अंदर चेंज लाने में, तो नेचर आपको सपोर्ट करेगा. बट अगर नेचर में जो चेंज आया आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप उसको सहन नहीं कर सकते हो, देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड. That is called as survival of fittest. कितना भी changes आए environment में हम उसको face करेंगे, उसको कहते हैं survival of fittest, and the fittest one is selected by the nature. So Darwin says this two statement. Now I will explain you the second last topic to revise is speciation. सिंपली इसका मीनिंग होता है एक न्यू स्पीशीज फॉर्म होना. थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेमार्किज्म पढ़ाया था जिसके दो रूल थे. अगर ऑर्गन यूज हुआ जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो वो ऑर्गन एनहांस होता है और हम एक नए फॉर्म में डेवलप होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन. एग्जाम्पल
जिराफ का। पहले वो शॉर्ट छोटा सा था, ग्राउंड ग्रेजिंग एनिमल। ग्रेजुअली जब ग्रासेस खत्म हो जाते हैं, अपने भूख के डिजायर को खत्म करने के लिए दे स्टार्टेड एनहांसिंग नेक लेंथ एंड लेग्स लेंथ। वैसे करते करते आज वो अर्थ का सबसे टॉलेस्ट एनिमल हो गया। दैट इज अ न्यू स्पीशीज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। सेम वे हमारे केस में हुआ, जिस ऑर्गन को यूज नहीं करते थे, अब जिराफ में वो यूजिंग ऑर्गन था, हमारे केस में मिस यूज ऑफ ऑर्गन था या डिस यूज ऑफ ऑर्गन था। आई एम सॉरी, इट्स अ डिस यूज ऑफ ऑर्गन। डिस यूज ऑफ ऑर्गन करते करते हमारे केस में वो वेस्टिजियल हो गया। वेस्टिजियल का मीनिंग होता है किसी काम का नहीं, होगा बट किसी काम का नहीं। बट ऐसा नहीं था कि कभी वो काम में नहीं आया था। इट वॉज एक्टिव और फंक्शनेबल इन आवर एंसेस्टर, बट हमारे एंसेस्टर के बाद जितने भी डिसेंडेंट्स थे उन्होंने उसका यूज ज्यादा किया नहीं। तो ग्रेजुअली 100 साल या 200 साल बाद हमारे केस में वो बहुत छोटा और बिना काम वाला ऑर्गन हो गया। तो हम भी एक न्यू स्पीशीज डेवलप हो गए, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द लास्ट टॉपिक कॉल्ड एज which we are going to revise in the last topic known as human evolution। तो ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। We completed this one, now the last one, human evolution। By that we end with this chapter। Now human evolution, यहाँ पे एक पिक्चर दिखा है जो सेम पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में है। फाइन, पहला वाला जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आया होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस सेपियंस। अब यहाँ पे अगर आप कीनली ऑब्जर्व करोगे, यू कैन सी इट इज ऑल अबाउट पोस्चर्स। पोस्चर्स देखो, पहला वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस थोड़ा बहुत ज्यादा ही बेंट है, होमो हैबिलिस थोड़ा सा इरेक्ट हुआ है, होमो इरेक्टस कंप्लीटली इरेक्ट हो गया है। एंड देन आगे जाके बॉडी हेयर, देन स्किल्स, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे उसने एरो हैंडल होल्ड किया हुआ है। इन केस ऑफ होमो निएंडरथैलेंसिस उसने एरो होल्ड किया है, इट मीन्स उन्होंने एरो बनाना सीखा। एंड फाइनली ये हमारा स्पीशीज है जो हम ऐसे बन गए। हमारे बॉडी पे कम हेयर होता है, इंटेलेक्चुअली भी हम स्मार्टर हैं इनसे। एंड दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओवर हियर यू कैन सी ब्रेन कैपेसिटी कंपेयर किया हुआ है। हमारे जो एंसेस्टर थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला वाला, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड लास्ट वन इज होमो सेपियंस सेपियंस। So along with the other body feature, the intellectual capacity had been increased in human being। And this is the end of the chapter revision। Once again I remind you, do like, share and subscribe for the next amazing video। Thank you very much।